welcome back to another episode of Bull Street. I'm Ronak Agarwal, and today we are in conversation with the CFO of Denia Tools, the company that got listed 2 years back. So, Mr. Kanav Gupta is the CFO, and we will be getting to know about the company from the promoter itself. So, let's get bullish. Hello, Kanav sir, how are you? Hello, good morning, Ronak. I'm good. So, sir, आजकल like how are you doing nowadays and like क्या चल रहा है? Buzz with me, it's more over business only. So that is what is going on. ओके सो सर अपने बारे में बताइए लाइक आपका चाइल्डहुड कैसा रहा और आप लाइक इस इंडस्ट्री में कैसे आए? So I am a proper Delhi guy. I have always been a sportsman. So मैंने अपने school time में तो I've enjoyed, I've played and that stuff. And shortly after that, I did my graduation from Delhi University, followed by a short course in management from London School of Economics. Then when I came from there, so I joined my uncle in his early establishment. It was like a small retail type shop in Chavri Bazaar. So I did my initial training also there, and we started from that setup to where we are now. ओके सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू जॉइंड इट तो आपने सोचा था कि लाइक मैं हमेशा से टूल्स इंडस्ट्री में जाऊँगा क्योंकि जब आप LSE में गए हो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तो आपके माइंड में क्या था लाइक वेयर डू यू वांट योर करियर टू गो? डेफिनेटली ये नहीं सोचा था कि मैं हमेशा टूल्स लाइन में जाऊंगा, बिकॉज टूल्स लाइन इज़ अ बिट अनऑर्गेनाइज्ड एंड अ ट्रेडिशनल टाइप सेटअप. एंड जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वो तो मोर सो इट वाज अ ट्रेडिशनल चावड़ी बाज़ार सेटअप, तो डेफिनेटली नहीं सोचा था. बट व्हेन आई जॉइंड इट एंड आई स्टार्टेड नोइंग द बिजनेस नो हाउस, आई क्विकली got the interest, and I very quickly knew that yes, this is going to be my future. तो लाइक हाउ वाज Denia started? Like what was the journey in starting Denia's? So we were dealers and distributors for about 4 to 5 brands, and we were in the same product line, but with a obviously a small sub dealer setup. So uh, with that हमने एक थॉट बनाया कि व्हेन वी कैन सेल अ पर्टिकुलर ब्रांड जो हमारा नहीं है, जिसकी आइडियोलॉजी हमारे से मैच नहीं होती, सो व्हाई नॉट क्रिएट योर ओन बेबी एंड उसको हम उसको हम आगे लेके चलें अपने साथ, तो मे बी वी कैन कनेक्ट बेटर टू आवर क्लाइंट्स. एंड द प्रोडक्ट रेंज ऑब्वियसली हमें उसकी नॉलेज थी, सो वी स्टार्टेड क्रिएटिंग आवर ओन ब्रांड एंड दैट took off quite well, I would like to say. तो Denia किस टाइप के प्रोडक्ट सेल करता है? So we are into core hand tools. Any tool that is not operated by power or does not require electricity or power, we are into that. So basically we are into tools that are extension of hands, used by hands. ओके तो आप लाइक इसका फ्यूचर क्या देखते हैं, इस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या देखते हैं? Hand tools are a staple for, I would say, all the industries, all workshops, all home spaces, small garage to a big industry. Everyone needs a hand tool. It is a staple need for every workshop, every setup. So इस इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा फ्यूचर है. मोस्टली ये प्रोडक्ट जो है ये ऑब्सोलीट नहीं होता. इफ़ द सेम काइंड ऑफ स्पैनर हैज़ बीन यूज्ड फॉर अबाउट 100 years और गोइंग फॉरवर्ड 100 years, आई डोंट थिंक कि ये ऑब्सोलीट होगा. दिस इज़ गोइंग टू बी द प्रोडक्ट. तो इसमें बहुत ज़्यादा forthcoming demand hai. So like you come from a different background and you joined this company, like you started this company Denia's. So was it difficult in starting a tools company because from the very beginning you're doing it? Everyone has a various challenge set जो कि मुझे भी face करना पड़ा, but I wouldn't say it was difficult. जब मुझे इसमें interest आया तो after a time leaving behind everything, your passion drives your hard work. So it became my passion somehow, और फिर I don't think I faced any challenges. उसके बाद तो there was no looking back, and I have been doing this business forever. और this line is very very closely related to automotive line. Being a boy, I think most of the boys are quite automotive enthusiast, car से related, gearboxes से related. तो I could quickly connect to the line I am in. तो आपको पर्सनली भी कार्स का शौक है?
Yes, definitely. I am a car enthusiast. Okay, so you drive any like sports car of anything or Yes, something? I am driving a Porsche right now, so Okay. I am very enthusiastic about it. And So when did you bought your Porsche? Like कब? Genius के start होने के बाद या क्या? obviously, Genius के start होने के बाद, I bought it in the last year, and so I've been enjoying it since then. Yes. Okay. So any other sports car जिसका आपको like अब craze है कि Genius के जब profits बढ़ेंगे तो I'll buy this car. हाँ, Genius का प्रॉफिट बढ़ेगा, सब कुछ होगा, थोड़ा सा एक जर्नी रहता ही है. But yes, I have many cars in mind. I would like to buy the BMW Z4 Okay. forthcoming if I am lucky enough to do so. ओके सो जैसे कि जो डीनियर्स आपने स्टार्ट किया ये टूल्स में है तो आप अपने पीयर्स को कौन कौन से कंपटीशन देखते हो जो लाइक आपको टफ कंपटीशन दे सकते हैं इस फील्ड में Peers, I would say, to their fortune, have been in this industry before me and many years before me. The brands I am competing with right now, they are about 40 years old, 50 years old, third generation, second generation, and in my case, we started Genius in the year 2018. तो एक टफ कंपटीशन ऑब्वियसली आता है, एक माइंडसेट उन टूल्स का ऑलरेडी बना हुआ है जनरेशन ऑन जनरेशन. बट येस, आई डोंट थिंक कि अगेन इफ़ आई एम पैशनेट अबाउट समथिंग तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसको ब्रेक करने में. एंड द क्वालिटी, द राइट प्राइसेस वी आर गिविंग, इट शुड नॉट बी अ वेरी लॉन्ग जर्नी. वो हम उसको थोड़ा सा क्विकली टेकअप कर पाएंगे द मार्केट शेयर वी वांट फॉर आवर ब्रांड. और देर आर अ फ्यू ब्रांड्स लाइक if I would like to name, so Stanley, Eastman hai, and there is the Paria tools. So yes, they are doing good since years now. But yes, we are giving them a tough competition and would like to surpass them in the coming years. तो लाइक डीनियर्स ने कब डिसाइड किया कि हम पब्लिक जाएंगे अपना आईपीओ लॉन्च करेंगे और लाइक व्हाट वर योर रीजंस टू लॉन्च एन आईपीओ See, ऑनेस्टली स्पीकिंग IPO लॉन्च करने का इनिशियल रीज़न तो होता है रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स. एट आर लेवल आई वुड लाइक टू से कि एक फ़ंड की लिमिट होती है, एक कैपिटल कैपेसिटी होती है. हाउ मच मनी कैन यू पुट इन, जो आपका सेल्फ जनरेटेड है या फिर आपका एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, वो तो एक उसकी एक कैपेसिटी है. तो विद IPO कमिंग इन, IPO मनी कमिंग इन, थोड़ा सा आपको इनिशियल ईयर्स में हेल्प मिल जाता है. And with the IPO money, your risk taking capacity increases, and what I had to achieve in the next 3-4 years, मैं वो कैपिटल आज ही या फिर 1-2 साल में ही लगाने का केपेबल हो जाता हूँ. तो दैट गिव्स अ बूस्ट इन टर्म्स ऑफ a few years. Do you think like IPO rather than just fundraising also helps in kind of marketing of the company? Yes, definitely. IPO का फंड रेजिंग एक प्राइमा फेशिया आता है कि इट इज़ फॉर फंड रेजिंग, बट IPO इज़ वे बियॉन्ड दैट. IPO से आपका कंपनी की मार्केटिंग हो जाती है. कॉन्फिडेंस, इवन माई कॉन्फिडेंस बिल्ट अप आफ्टर द IPO, एंड the investors, the customers, the kind of faith they show in you, that is tremendous. That obviously boosts your confidence. And everyone knows that when you are a listed company, your balance sheets are available online, so they basically feel more comfort in dealing with you in terms of your financials being एक ज़्यादा transparent. फेथ आ जाता है. Definitely. तो लाइक जैसे कि आज भी कितनी सारी कंपनीज होती है जो मैं पर्सनली देखता हूँ दे हैव द गुड प्रॉफिटेबिलिटी एवरीथिंग इज गोइंग और रेवेन्यू इज गुड द बिजनेस इज एक्चुअली वेरी यूनिक बट स्टिल वो हिचकिचाते हैं कि अपना IPO लाएं क्योंकि उनको लगता है काफ़ी ज़्यादा कंप्लाइंस बढ़ जाएगा, काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी. तो ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आपने फेस की थी IPO लॉन्च करवाने में? नहीं, आई थिंक वी हैव बीन कंप्लायंट. थोड़ा सा पेपर वर्क डेफिनेटली बढ़ जाता है, बट दैट कैन बी मैनेज्ड. तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट हम अगर थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स को या फिर चैलेंजेस को इग्नोर करके इसका बिगर एस्पेक्ट देखें तो वन शुड डेफिनेटली गो फॉर IPO. अब जैसे कि इसमें भी बहुत सारे रोल्स होते हैं लाइक देयर आर मेनी पार्टीज दैट प्ले अ रोल इन द IPO. तो ऐसी एक बहुत फेमस पार्टी जिसको हम एंकर इन्वेस्टर्स कहते हैं जो आजकल बहुत फेमस हो रही है, तो उसका क्या रोल रहा आपकी जर्नी डीनियर टूल्स की लिस्टिंग में? कोई अगेन एंकर इन्वेस्टर का जो प्राइमा फेशिया रोल होता है टू पुट इन मनी, वो तो एक ऑब्वियसली व्हाट मनी डज वो तो मनी ही करता है. वो एक रोल बहुत प्राइमा फेशिया रहा. बट उसके अलावा द एंकर इन्वेस्टर्स, आई कुड यूज़ देयर
amount of experience they had in capital market, they were like mentors to me. मुझे capital market में काफ़ी ज़्यादा knowledge, how to go about it, how to shape my coming 5 years, how to make my plans, उसमें बहुत ज़्यादा help मिली. So anchor investor से more than money, I got the right kind of mentorship I needed. ओके सो लाइक आज अब आप क्या देखते हैं कि यार डीनियस आने वाले 5 साल में क्या हो सकता है, लाइक क्या फ्यूचर देखते हैं आप डीनियस का, और ये जो टूल इंडस्ट्री है कितने कितनी प्रॉफिटेबिलिटी से बढ़ रही है, क्या उसका रेट चल रहा है? जो टोटल वर्ल्ड टूल इंडस्ट्री है दैट इज़ एट अबाउट $22 billion राइट नाउ. इट इज़ इंक्रीजिंग बाय अबाउट 12 to 15% CAGR पर एनम. डीनियर्स का प्रोस्पेक्ट मैं क्लोजली बहुत ज़्यादा आई एम पॉजिटिव अबाउट इट बिकॉज I know how aggressive we are. We are young promoters. We are very aggressive. We are doing everything to make the brand big, to make it a global name. So we started with only domestic markets, but now we are increasing our boundaries global also to capture the global market, because obviously the global market is way bigger than the domestic market. So we exhibited in Germany also in this last March, and we are setting up an office in Dubai also to capture the global market. So yes, the growth potential is tremendous. तो जैसे कि क्योंकि आप डीनियस का टूल एक्चुअली मैं कहूँ तो एक काइंड ऑफ डीलर्स को प्रोवाइड करते हैं टूल्स, एंड डीलर्स सेल दैट प्रोडक्ट्स. Yes, we have a dealer family. About 300 to 350 dealer network है हमारा. तो हम उनको tools देते हैं and they supply further to OEMs और retailers. तो कोई ऐसा पर्टिकुलर डीलर जिसके साथ डील करने में बहुत दिक्कत आती है, जो हमेशा कुछ ना कुछ नखरे करता हो? नहीं, सबका अपना अपना एक नेचर होता है. एंड मी डीलिंग विद सो मैनी पीपल पर्सनली, मुझे भी एक नैग आ जाता है टू डील विद पीपल कि किसके साथ कैसे डील करना है. तो ठीक है, ऑब्वियसली सम आर ईजी टू डील एंड सम आर डिफ़िकल्ट टू डील, बट वो एक नैग आ जाता है तो ठीक है. बट कोई ना कोई तो रहता होगा ना कि यार आज इसके साथ जाना है यार, मिलना नहीं है आज इससे, ये फिर परेशान करेगा, कुछ ना कुछ कहेगा. वो एक दो केसेस में ऐसे होता है कि एवरी टाइम यू मीट तो वो %.5 डिस्काउंट मांग लेते हैं, विच एट माई लेवल इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज वी ऑब्वियसली फॉलो अ यूनिफॉर्म डीलर पॉलिसी. तो मैं एक को दिया तो बाकी को भी देना पड़ेगा. यस. सो इवन बीइंग अ डायरेक्टर मेरे हाथ में वो नहीं है. आई कैन नॉट इंक्रीज द डिस्काउंट्स, आई कैन नॉट डू फेवरिज्म टू वन डीलर. तो वो तो इट इज़ नॉट इन माई हैंड्स. और बट उनको नो करना भी तो बहुत मुश्किल है, फिर आप करते कैसे हैंडल ये सब? आई थिंक एक्सपीरियंस यही सिखाता है. एक्सपीरियंस से धीरे धीरे येस नो करना आ जाता है. दैट इज़ हाउ इट गोज. तो राइट नाउ एट व्हाट पोजीशन यू आर इन द कंपनी? I am the whole-time director and CFO of Denius Tools Limited. Okay, so is there any other CEO of the company or the co-founder? No, my Mamaji is co-founder with me. He is the MD of the company and I am the CFO. Okay, so अब जैसे कि besides Denier, जैसे कि ये तो आपका रहा वर्क लाइफ, तो प्रोफेशनल लाइफ के अलावा आपको पर्सनल इंटरेस्ट क्या रहते हैं? व्हेन यू आर नॉट वर्किंग, व्हाट यू आर डूइंग? So आई वुड लाइक टू बिलीव मुझे सोना बहुत ज़्यादा पसंद है. तो when I don't work I sleep, especially on Sundays. Plus I have been a sportsman. I used to play table tennis. So although less, but I take out some time to play. And I also invest in the market. So driving the sports car as well? Yes, definitely. So sports अभी भी आप regularly खेलते हैं कि it's अब sideline हो गया है? Not so regularly. It is more of a hobby now to stay fit. Yes, I play, but not so often. और अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को आप कैसे देखते हैं? आप what kind of companies do you pick for your investing, personal investing? For me, a promoter is more important than a company or the product. So I would like to see the promoter speaking, the promoter's conversation, जो promoter ने लिखा है company के बारे में, या promoter का take. For me, the biggest green flag is the promoter himself. वो कितना aggressive है about the company, उसके लिए company की क्या value है, वो मेरे लिए ज़्यादा important है rather than financials. Financial obviously plays a part, but मेरे लिए जो मैं पिक करता हूँ वो मैं प्रमोटर को देख के बेट करता हूँ. ओके, कोई ऐसा अदर प्रोफेशन जो आपको लगता है अगर आपने शायद डीनियर स्टार्ट नहीं किया होता तो आप उसमें ज़रूर गए होते, जिसमें आपको पर्सनल इंटरेस्ट बहुत रहा हो कि अगर मैंने ये इंडस्ट्री नहीं ज्वाइन की होती तो उसके अलावा मैं यही कर रहा होता? आई वुड लाइक टू बिलीव जो मैं कर रहा हूँ मैं इसमें बेस्ट हूँ और मैं यही कर रहा होता. बट फोर्स से अगर मैं
कुछ सोचूं तो आई थिंक आई वुड हैव बीन अ investor for a long term, because Okay. if I am confident about something, I am not very hasty about it. I have the patience to see it grow. So you're investing from your college days only? Yes, I started a little while after my college. Hmm. You can say third year के आसपास से I started Okay. So investing. what was your first investment और उसने क्या return दिया actual में? um, I think I invested in some Tata share Hmm. और Which तब Tata? They have more. they have टाटा more- मोटर्स आई थिंक Okay. आई बॉट माई फर्स्ट शेयर. Hmm. सो बहुत ज़्यादा रिटर्न इसलिए नहीं दिया बिकॉज तब हमने इस मैंटेलिटी से नहीं लिया कि आई वुड लाइक टू कीप इट फॉर 10 ईयर्स. जो मैंटेलिटी अब है कि दैट यू मी बीइंग अ प्रमोटर माई सेल्फ, मुझे पता है गुड थिंग्स टेक टाइम. तो एक आप चीज़ लोगे, उसको 5-7 साल नरिश करोगे, सक्सेस डजेंट हैपन ओवरनाइट. तो 4 दिन में कोई रिटर्न नहीं देता स्टॉक, या फिर कोई कंपनी भी रिटर्न नहीं देती. तो तब मैंटेलिटी या माइंडसेट ये नहीं था. तो आई थिंक आई सोल्ड इट विद इन अ फ्यू मंथ्स एंड आई अनफॉर्चुनेटली डिड नॉट बैक जितना मुझे मिल सकता था. बट येस, दैट इज़ हाउ माई जर्नी बट स्टार्टेड. जैसे कि हर कोई अपनी एक फिलॉसफी फॉलो करता है, जैसे कुछ कुछ लो पी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, सम पीपल डू जिसमें बहुत ज़्यादा हाई प्रॉफिटेबिलिटी होती है. तो लाइक आपकी क्या थीम रहती है? थीम इन्वेस्टिंग में आप कैसे करते हैं अपनी? मेरा मेजरली थीम ये रहता है कि वो फ्यूचर ऑप्शंस का पार्ट ना हो. ओके. बिकॉज थोड़ा क्यों? सा वो स्पेकुलेटिव हो जाता है. ठीक है. सो कैश का हो और लॉन्ग टर्म थीम है तो प्रमोटर्स अगेन अच्छे हों. और एनी पर्टिकुलर सेक्टर जिसमें आप लाइक बहुत ज़्यादा सर्च करते हो कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में हो तो मैं फेवरेबल इन्वेस्टिंग करने के लिए लाइक? आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड तो सोलर सेक्टर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, पावर सेक्टर है. दीज आर गोइंग टू बी ट्रिमेंडस एंड दे आर गोइंग टू डिफाइन द नेक्स्ट 10 ईयर्स ऑफ आवर इंडस्ट्री. ये टूल्स इंडस्ट्री जो आप जैसे ग्लोबल लेवल पे अगर आप देखते हो तो आपको क्या लगता है कि टूल्स इंडस्ट्री का कितना मार्केट साइज होने की कैपेबिलिटी है? The tool industry can easily double in next 4 to 5 years from where it is now. और इज इट रिप्लेसेबल बाय एआई समहाउ? No, that is the best part about the tool industry. जो स्पैनर आज से 50-100 साल पहले बन रहा था, एग्जैक्टली वही स्पैनर आज भी है. थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन, थोड़ी बहुत चेंजेस आर इग्नोरेबल, बट डेफिनेटली जो कोर प्रोडक्ट है दैट रिमेन्स द सेम. वो ऑब्सोलीट नहीं होता. आई अंडरस्टैंड कि AI आ गया या फिर बिग कंपनीज दे आर कमिंग अप विद पावर टूल्स जो कहीं ना कहीं रिप्लेस कर सकती हैं इसको. बट जो टिकट प्राइस पे एक हैंड टूल ऑपरेट करता है उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है एक महंगे या 20x प्राइस के प्रोडक्ट से रिप्लेस करना. सो इट विल रिमेन एज इट इज़. तो लाइक जैसे कि आई वाज सर्चिंग अबाउट डीनियर्स, यू हैव अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ SKUs. सो लाइक इतने SKUs को लाइक मैनेज करने में डिफिकल्टी नहीं होती पर्सनल लेवल पे? Yes, that is the main art we are doing. So we are into contract manufacturing and हम SKUs को manage करते हैं. Highest number of SKUs in India I can proudly say हमारे पास है. We are dealing in more than 5,000 SKUs which no other brand in India has. So we are a one-stop shop for all hand tool needs. If my dealer wants to purchase hand tools या उसने एक hand tools की range maintain करनी है, Deniers is the name. He calls up Deniers, he gets all the hand tools. So from one brand or from one home, his total hand tool needs is at least satisfied. तो लाइक डीनियर्स के आप अभी फ्यूचर कोलैबोरेशंस कुछ एनी कोई पर्टिकुलर न्यू प्रोडक्ट दैट यू आर लॉन्चिंग वेरी सून? We came up with measurement tapes last year, and there is a very good product, SDS drill bits. वो use करके it gets scarred off, तो उसकी थोड़ी सी आई वुड लाइक टू से यूजेज भी ज़्यादा रहती है. ऐसे तो एक हैंड टूल यू कीप यूजिंग वो ख़राब नहीं होता, ख़त्म नहीं होता. सो ड्रिल बिट्स में थोड़ा सा वो डिमिनिशिंग वाला वो फैक्टर रहता है कि वो कुछ घंटे की लाइफ के बाद इट एंड्स. तो उससे हमें रेवेन्यूज़ ज़्यादा जनरेट हो सकते हैं. सो वी आर लुकिंग फॉर दैट एंड वी विल बी लॉन्चिंग फुल रेंज ऑफ ड्रिल बिट्स सून. ओके. तो अभी ये जो डीनियर्स है, डीनियर्स में जितने सारे SKUs में से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो मैक्सिमम सेल्स में कंट्रीब्यूट करता हो आपकी? 60 to 70% of our sale come from 20 to 25% of the product range. ओके. So there are spanners, there are pipe wrenches, there are adjustable wrenches, there are ring spanners. तो ये 4-5 हीरो प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी मेजरली ज़्यादातर सेल कंट्रीब्यूट करती है. बट अगेन जो 30% नीश आइटम्स हैं उसमें हमारा फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी है
उसमें हमारा एक अपर एज भी है एंड वी आर द ओनली पीपल डूइंग दैट, तो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी बेटर रहती है. इवन इफ द रेवेन्यूज़ आर लो, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी बेटर रहती है, और दैट क्रिएट्स अ नीश ऑफ डीनियर्स बिकॉज दोज प्रोडक्ट्स ओनली वी हैव इन इंडिया. तो लाइक जैसे कि डीनियस का ये जो करंट वो चल रहा है, आगे आने वाले फाइनेंशियल्स हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लाइक जो भी आप लाइक जिस पे वर्क करो, वेरी एग्रेसिवली यू आर वर्किंग, सो यू मस्ट हैव थर्ड कि लाइक इतना तो मैं अब रेवेन्यू सोच के बैठा हूँ. Probably I am the wrong guy to ask this question because मैं तो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ सेल्स को लेके और आने वाले फ्यूचर को लेके. बट इफ़ आई टॉक टू यू वेरी कंजर्वेटिवली, अगर हमारी टूल इंडस्ट्री 12 to 14-15% पे बढ़ रही है, तो आई वुड ईजीली लाइक टू बिलीव कि मैं 30% के अराउंड CAGR आई कैन गैदर ओके. कंजर्वेटिवली. कोई ऐसा फनी इंसिडेंट जो आपको लगता हो आपके साथ हुआ हो डीनियस से एसोसिएट, लाइक जब आपने स्टार्ट किया हो या फिर जो भी आप जर्नी में अभी भी फेस करते हैं, जो आपको लगता है इट इज़ क्वाइट फनी? हमने एक IPO के बाद IPO की सक्सेस मीट की थी. ठीक है. So we had good amount of dealers and investors. Approximately, it was a meeting of 250-300 people. So I was organizing the whole thing. इट वॉज इन दिल्ली ओनली? It was in yes, Aero City, Pride Plaza Hotel. We had it. ओके. So we organized a small डांस परफॉर्मेंस. तो आई कॉल्ड अप द इवेंट मैनेजर एंड मैंने उनको कहा था कि एक डांस परफॉर्मेंस टाइप फॉर द डीलर्स टू बी ऑन अ सेम प्लेटफॉर्म एक थोड़ा सा रख लेते हैं, कीपिंग इन माई माइंड कि भारतनाट्यम टाइप या फिर एक ट्रेडिशनल टाइप का डांस फॉर्म होगा. एंड टू माई सरप्राइज इट was a proper Bollywood drama type of performance. So that was a kind of an oops moment or Okay. or an awkward moment for me. But I would like to believe that the dealers and Enjoyed it. yes, they enjoyed it. उसके बाद उन्होंने डीनियस के शेयर और खरीद लिए. I would like to believe so. ओके. तो आप जैसे कि ये हो तो डीनियस की बात हो गई, आपने बताया कि आपको इन सब चीज़ों का शौक है. जैसे कि क्या होता है, जैसे जैसे हम इवॉल्व होते रहते हैं, जैसे जैसे वी आर अक्यूमुलेटिंग वेल्थ, हमारे न्यू पैशन न्यू हॉबीज़ डेवलप होते रहते हैं. तो ऐसा कोई न्यू हॉबी या पैशन जो आपका भी रिसेंटली डेवलप हुआ हो इन दिस इंटायर जर्नी ऑफ डीनियर्स, या फिर आप लोगों को देखा होगा कि यू एसोसिएटिंग वेरियस डीलर्स, तो आप देखते हो कि अच्छा ये भी करता है तो मैं भी ये ट्राई करता हूँ. I think most of my time is invested in deniers only. So this is my old passion and this is my new passion. I am very focused on my brand, on my business. So ऐसा कोई new passion नहीं. But yes, nowadays I am focusing on the OEM sales of my business, direct OEM sales, which I was not doing earlier. Plus, I am extending my international boundaries because India definitely has a particular geography जिसमें एक particular number of dealers ही बन सकते हैं. So to make a new set of dealers, I have to go global. So that is yes. So you the must be only traveling passion to has been. abroad a lot, right? Not a lot, yes, but recently I have been going to Dubai for the new office setup we have done there last month. Okay. So what is your favorite country जितने आप अब तक गए हो, like abroad wise? My favorite country I would like to believe is Europe, Switzerland, being it serene, and we live in Delhi, so we are not short of any hustle or bustle in the everyday life. So I don't like cities which has a very busy life or a hustle bustle. When I am on a holiday, I like it to be serene and calm. At least it breaks the monotony. So Switzerland is like that. तो जैसे कि जस्ट हमने अभी अब आपको इंट्रोड्यूस किया कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू विद दिस प्लेटफॉर्म, बिकॉज रिटेलर्स को नहीं पता होता कि विच कंपनीज दे शुड चूज़ फॉर द माइक्रो कैप एंड फॉर द स्मॉल कैप एज वी से. तो आपको क्या लगता है ये जो प्लेटफॉर्म है ये पब्लिक की कैसे हेल्प कर सकता है? लाइक डू यू थिंक इट इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर द पब्लिक? Yes, Ronak, I think it is a great initiative from you. You are doing a wonderful job, and not many people are doing this job. You are connecting us, the promoters, to the retailers. Sorry. So ये दोनों साइड से बेनिफिशियल है. जिसने इन्वेस्ट करना है या जो रिटेलर है, दे वांट टू नो अबाउट द कंपनी closely, and promoters like me, we want to tell about our company, be more vocal about it. We want to share our thoughts. So it is a dual benefitary kind of a thing you are doing. It is a great initiative. तो जैसे कि आई जस्ट वांट टू नो दैट बिकॉज यू आर एंटरप्रेन्योर बाय नेचर, एंड एंटरप्रेन्योर की जर्नी जो होती है काफ़ी रोलर कोस्टर जर्नी होती है. तो रोलर कोस्टर जर्नी में
क्या ऐसा क्या होता है लाइक जिससे आप अपना आपको पीस देते हो? बिकॉज मेनी टाइम्स इट हैपन जो आप एक्सपेक्ट करो वो नहीं होता, मेनी टाइम्स इट हैपन जो आप एक्सपेक्ट जितना कम करो उससे ज़्यादा हो जाता है. तो हाउ डू यू लाइक मैनेज ऑल दोज क्योस? येस, आई वुड लाइक टू बिलीव ऐसा तो होता ही है, रोलर कोस्टर जर्नी है, हम सोचते कुछ और हैं बट मार्केट डेफिनेटली हमेशा वैसे बिहेव नहीं करती. तो ठीक है, एक एज यू सेड कि एंटरप्रेन्योर में अपने आप से एक सेल्फ कोपिंग मैकेनिज्म होता है एंड वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक. अगर हम कोई डेडलाइंस अपने लिए फिक्स करते हैं, दे डोंट गेट अचीव्ड बाय द फिक्स्ड एम्पुलेटेड टाइम, वी आर वेरी होपफुल कि हम उससे ज़्यादा ही अचीव करेंगे इन द कमिंग ईयर्स. तो इट डज़ नॉट क्वाइट बॉदर मी व्हेन द थिंकिंग इज़ गुड एंड व्हाट वी आर डूइंग इज़ राइट. तो इट डजंट क्वाइट बॉदर मी फॉर द शॉर्ट टर्म. ये आपकी कंपनी है, इसकी यूएसपी क्या है? व्हाट इज़ द यूएसपी इन इन्वेस्टिंग इन डीनियर्स एंड इन डीनियर्स वैसे भी? डीनियर्स की यूएसपी, हम बहुत ज़्यादा क्वालिटी फोकस्ड हैं. जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं, वी आर गिविंग द बेस्ट क्वालिटी अवेलेबल इन इंडिया एट द राइट प्राइसेस एंड वी आर अ वन स्टॉप शॉप फॉर आवर डीलर्स. वी वुड प्राउडली से कि हम जितनी SKU रेंज कैरी कर रहे हैं दैट इज़ द वाइडेस्ट इन इंडिया, जिससे कि हमारे कस्टमर को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है. दे गेट एवरीथिंग वन स्टॉप and we are truly passionate about growing our business. हम नॉर्मली एक सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी डिराइव करने के लिए नहीं कर रहे, वी आर रियली अटैच टू द ब्रांड एंड वी आर रियली एग्रेसिव टूवर्ड्स मेकिंग द राइट थिंग हैपन फॉर अस. ओके, सो लाइक अब ना मैं आपके साथ एक रैपिड फायर क्वेश्चंस करने वाला हूँ. ये मेरा पहली बार आपके साथ ही होने वाला है बिकॉज क्या है कि इससे ना वी आर एबल टू जज लाइक हाउ फास्ट द एंटरप्रेन्योर इन डिसाइडिंग थिंग्स. ओके, ठीक है, सो मैं आपको 2 चॉइसेस दूंगा, वो किसी में भी आंसर देना, उसका आंसर का रीज़न भी देना है. ओके, ठीक है, एंड आपके पास 5 सेकेंड्स होंगे हर आंसर का. ओके. ठीक है, सो आई विल स्टार्ट विद माउंटेन और बीचेस. माउंटेन ऑफ बीचेस, बाली. बाली, वाई? I think I recently visited, so that kind of popped up in my mind. Okay, And so you will say night club or like relaxing at home? relaxing at home. Okay, family or friends? Roaming with family or roaming with friends? The friends which are very close to you are family. So family. Okay, It covers both the closest friends and the family. so what is your stress buster according to you? Favorite stress buster? Sleeping. Sleeping. And anything, there's nothing else than sleeping? Seriously speaking, a real stress buster is a positive feedback. When I work so tirelessly and I get a positive feedback about the product, about the company from my clients, so that is a really a stress buster. Your favorite movie? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा was a nice movie. You are also in the kind of like traveling theme कि friends के साथ जाके travel करना Yes, है. yes, I love traveling. Okay. Any last moment that you feel that has like give you very overjoyed moment kind of thing जो आपके साथ just recently हुआ related to your company or related to you? So getting the company listed was a very joyous moment for me and it was very memorable. So like you also did that. आप लोग बुल्स के साथ जाके फोटो खिंचवाते हैं. I remember clicking a picture on the NSE podium with the bell and that was a So you put it that in Instagram as well? Yes, yes. Okay. So that was my rapid fire. I just wanted to know that. So I hope कि हम future में और podcast collaborate करें and I would like to know the future of Deniers after 6 months as well. कि Deniers financial wise क्या कर रहा है, everything related to Deniers. Because क्या tool industry is a very, I would say, very small industry and it has to grow very fast now. And there are very less peers as well. Like Yes. people, I guess, I just know कि Taparia is only the listed company for now. Yes, And you are the second listed company. yes. And plus you will be having a good turn towards each other in Yes. terms of revenue, everything. So I Yes. would like to know कि after some point of time Deniers कैसा कर रहा है. So surely we will have a podcast and it was really nice to collaborate with you, Kanav, and we'll surely look forward. Thank you so much, Denier. Thank you, Ronak, for your time.